حضرت مصطفیٰ کے بیٹے کا دنیا سے بظاہر انتقال ہوا. بظاہر زندگی رکھے آپ کی بابا. آس بن وائل ملعون نے محبوب کبریا کو بے اولادی کا طعنہ دیا کہ اب تو تمہارا نام لینے والا بھی کوئی نہ بچا. مصطفیٰ کی پیشانی پر شکن ابھری. وہ اللہ جو بے دل ہو کر بھی حسین کے نانا سے محبت کرتا ہے. اس نے اپنے محبوب کی پیشانی کی شکن کو دیکھا تو فوراً جبریل سے کہا کہ میرے محبوب کو یہ پوری صورت سنا کے آ. جبریل نے نالین مصطفیٰ پہ ہاتھ رکھے. قرآن سے بڑی اہم کوئی کتاب دنیا میں ہے ہی نہیں, اور اتنا لطف ہے قرآن میں کہ اگر اسے سمجھ کے پڑھا جائے تو شاید جناب کو کوئی اور کام کرنے کو جی نہ چاہے. اگر اسے تلاوت کے لیے پڑھا جائے تو پھر ظاہر تھکاوٹ ہو جائے گی. ایک پارہ پڑھیں گے, 2 پارے پڑھیں گے, پھر تھک جائیں گے. لیکن اگر اسے سمجھا جائے تو میرے خیال میں ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے اگر اس میں غور کیا جائے تو. قرآن میں اتنے ہدایت کے سمندر ہیں, چشمے ہیں. تو جبریل نے آ کر کیا کہا حسین کے نانا سے؟ فرمایا اللہ کہہ رہا ہے سرکار کہ یہ مشرکین کے طعنوں سے تو گھبرا رہا ہے. اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. میں جذباتی خطیب نہیں ہوں کہ جو جناب سوچ رہے ہو میں وہ پڑھوں, جو تمہارے ذہن میں ہو میں وہ پڑھوں. نہیں, جو قرآن کہے گا میں وہی گزارش کروں. اس سے آگے مجھے جانے کی ضرورت بھی نہیں اور نہ جایا جا سکتا ہے. قرآن سے کراس کریں گے تو پھر شرکی ہے. علی کو مان کے مشرک نہیں بننا چاہیے, مومن رہنا چاہیے. تو اس لیے چہرے پر مسکراہٹ رکھنا بڑا خوبصورت, بڑا دل کر رہا ہے میرا کچھ کہنے کو. یہ لائیو چل رہی ہے, باقی تو جہاں بھی لوگ سن رہے ہوں گے. حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے. اب یہاں پر بریکٹ میں لکھا گیا کہ کوثر پانی کا چشمہ ہے, قیامت کے دن نصیب ہوگا جناب کو, اور کس کو ملنا ہے؟ جس نے علی کو کبھی زندگی کے ایک سانس میں بھی نہیں سوچا, بے سوچ علی کو مانا ہے. آپ کی کیا بات ہے جی؟ ایسے ایسے ان چیزوں کا بھی تجربہ ہمیں ہو جائے گا کہ ایسی محفلیں بھی ہوتی ہیں. چلو ماشاءاللہ خوبصورت محفلیں ہوتی ہیں ایسی. ابھی بھی یہ میک شیک نہ ہوتا, لائیو نہ ہوتی تو بڑی باتیں ہوتی. یہ تم نے نقصان کیا ہے, لیکن اب نہیں ہو سکتا, اب پھر کبھی سے. حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا, پانی کا چشمہ دیا ہے رسول نے. عقل نہیں مانتی, بچہ بھی نہیں تسلیم کرے گا. معاذ اللہ قرآن کی حقانیت پہ انگلی اٹھے گی کہ لے بیٹا رہا ہے, 1 2 3 4 بندے, ان میں بھی بندے گننے پڑ گئے, اور دے پانی رہا ہے. تسلیم نہیں ہوتا نا. اولاد کا بدل پانی نہیں ہے, اولاد کا بدل اولاد ہے. اولاد کا بدل اولاد, یہ پانی تو نہیں ہو سکتا نا. تو جب معصوم سے پوچھا گیا, میرے قرآن کے چھٹے وارث سے پوچھا گیا جس کے نام سے جناب کا مذہب مشہور ہے, جب سرکار صادق سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کوثر ہے کیا, کتاب کا نام بھی الکوثر ہے, اس کی 2 جلدیں ہیں, وہ اکٹھی پڑھی ہوں نا تو پھر الکوثر پورا بنتا ہے نام. ایک پر الکو لکھا ہے, دوسرے پر سے اور رے لکھا ہے. وہ لائبریری میں اکٹھی پڑھی ہوں تو پتہ چلتا ہے الکوثر. 2 جلدیں ہیں اس کی. اسی میں آپ کے چھٹے مولا کا سے سوال کیا کہ مولا کوثر ہے کون جو اللہ بیٹا لے کر اپنے محبوب کو حوصلہ دے رہا ہے؟ فرمایا کوثر پانی نہیں ہے, میری دادی سیدہ کا نام. آج ہاتھ پھیلے گا وہ خیرات لے کر جائے گا, جو ہاتھ نہ اٹھا سکا اس کی اللہ کرے مجبوری نہ ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے, آپ کی کیا بات ہے. چونکہ حسن نے یہی حکم کیا تو میں اس کی تعمیل کر رہا ہوں. فرمایا کوثر
कसूर तुम्हारा है जो जमाना गुस्ताखी पे तुला हुआ है। तो तुमने फजाइल न सुने हैं न पढ़े हैं। अगर फजाइल उस मेराज पे तुम पढ़ते शिया और सुनते तो आज मुल्ला की क्या जरूरत थी कि वो सैयदा की शान में भाईजान गुस्ताखी कर जाता। कसूर तुम्हारा है कि अगर जिसने फजाइल पढ़े भी से तो तुमने कह दिया ये मुशरिक हो गया है, ये गाली हो गया है, ये नुसैरी हो गया, वो बेचारा डर के पीछे हट गया। तुम अभी तक चक्की पीसने वाली बतूल को जानते हो। जो पहुंच गया है थोड़ा सा ऊंचा बोलो गजब। थैंक यू। अल्लाह अकबर। आपकी क्या बात है? इससे ज्यादा दाद मांगूंगा नहीं, इतना बस बोलते रहना ताकि मैं छिड़ा रहूं। छेड़छाड़ बंद होगी ना तो फिर लाइन नहीं जुड़ेगी। मालिक आपको सलामत रखे जी। जब भी जनाब सैयदा का फजाइल पढ़ा जाए भाईजान तो यही कहा जाता है सीरत सैयदा है कि चक्की चलाती थी बतूल। ये सीरत नहीं है, वाकया है। यार इतनी इलीट क्लास में भी मुझे कहना पड़े कि बोलो तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगा ना। मैं तो पता नहीं कब से कह रहा था कि यार मुझे छुट्टी दे तो मैं जाऊं, लेकिन अब चूंकि दो भाई थे तो हुक्म की तामील में आ गया। इतना अच्छा समझा मैंने आपको तो मेरा यकीन बहाल रखना। ये सीरत नहीं है, सूरत जी नहीं, ये वाकया है। चक्की चलाना चलाई है चक्की, लेकिन ये सीरत सैयदा में शामिल क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारी जहालत हो सकती है। मैं आज हसन के घर में आप मोमिनीन के सामने क्यों आया हूँ? हुसैन मौला की मजलिस पढ़ने। तो वहां बैठकर मैंने चाय पी। जिसने मुझे चाय पीते हुए देखा उसने मुल्तान अज़ादारी पे लगा दिया। जाफर मुल्तान चाय पीने आया था। जी थोड़ा सफर करना है। मुझे अम्मार ने कहा, तनवीर नकवी ने कहा, फराज शाह ने कहा कि भाईजान यहाँ पर एक अच्छी शॉप है, वहां से कपड़े अच्छे मिलते हैं, गर्मी का सीजन है तो ले ले। जिसने मुझे शॉपिंग करते हुए देखा उसने कहा कि जाफर शॉपिंग करने आया था। जिसने मुझे खाना खाते हुए देखा उसने समझा कि जाफर खाना खाने आया था। ना मैं खाना खाने आया, ना मैं चाय पीने आया, ना मैं शॉपिंग करने आया। मैं आया हूँ हुसैन मौला की नौकरी करने। ये 3-4 वाक़ये थे जो हो गए। जिसके अंदर सैयदा का मार्फत थोड़ी सी भी है। जिंदगी रखेगी। 1, 2, 3, 4 बंदे हैं हसन तेरे मजमे में जो मुस्कुरा रहे हैं, बाकी चलो बोल भी रहे हैं। खुदा का वास्ता यूं ना करवा यार, नहीं दिल कर रहा यूं करने को, अपनी मर्जी से बोल पड़। ये वाक़ये थे जो हो गए। मैं न चाय पीने आया, ना मैं शॉपिंग करने आया, ना मैं खाना खाने आया। मैं हसन के यहाँ मजलिस पढ़ने के लिए आया हूँ। ये वाक़ये थे जो लोगों ने कहा कि जाफर चाय पीने आया था। हकीकत में मैं मजलिस पढ़ने आया हूँ। नहीं आई जमीन पर चक्की चलाने हुसैन की माँ। और याद रखे लाइव जो सुन रहा है, कभी भी बतूल चक्की ना चलाती अगर खाने वाला हुसैन ना हो। आपकी क्या बात है? आप सलामत रहे, हाथ बुलंद कर लो है। सलामत रहो यार जिन्होंने जनाब सैयदा की शान पर मुस्कुराए हो, हाथ उठाए, सलाम किए। हाँ जनाब मैं अब क्या बताऊं? यूं उंगली का इशारा करता है ना शाह नजफ, तो कायनात को रिज़्क़ पहुंच जाता है। अब मैं क्या करूं? या अली से भी माफी मांग रहा हूं। या अली ये भी तो तेरे घर की बात है, अब मैं किधर जाऊं? जो अली रबूबियत को पालता है वो अल्लाह वाला हाथ फैलाकर बतूल से कहता है मेरी रोटी कहां पड़ी है? खुदाई को पाल रहा है, जो
رب کی پوری زمانے میں کیا بات چلو کیا یاد کرو گے نا، جعفر جدوئی کسی کے ابا کا نوکر ہے، بڑا نخرے والا، چونکہ بڑے سردار کا نوکر ہوں، چھوٹے موٹے بندے کا نوکر نہیں۔ دنیا والوں کی فائلیں گورنمنٹ کے پاس ہیں، کسی کو 12,000 دینے ہیں، کسی کو 30,000 دینے ہیں۔ ذاکروں کی فائلیں نجف کے پاس ہیں، مقصر کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ سارے خوش ہو رہے ہیں، اے بے روزگار ہو گئے نہیں۔ ہاں ان کو کرونے کا ڈر نہیں، ہماری خوشی ہے کہ یہ دیکھو اب پڑے ہوئے ہیں گھروں میں، ہم پہلے بھی گھروں میں۔ جو علی شک میں مادر میں ہمیں بھوکا نہیں رکھ سکتا، وہ علی زمانے میں ہمیں بھوکا رکھ کے مارے گا۔ تھوڑا سا ظاہر ہے قدم ڈگمگاتے ہیں انسان کے، نہیں ہونے چاہیے، مضبوط رہنے چاہیے۔ یہ ایمان کی پختگی کا زمانہ گزر رہا ہے، یہ جو زمانہ گزر رہا ہے نا، بہت اچھے۔ جب علی اور سیدہ کا عقد ہوا تو 2 نکاح ہوئے، ایک زمین پر ایک آسمانوں پر۔ زمین پر اہتمام انتظام سرکار مصطفیٰ نے کیا اور خطبہ نکاح بھی خود پڑھا۔ آسمانوں پر اللہ نے انتظام کیا، اور کتابوں میں لکھا ہوا، چلو چھوٹی بات کر لیتے ہیں، خطبہ جبریل نے پڑھا نکاح کا، تاکہ وہ بکائیاں نہ آئیں۔ آج وہ لوگ مل گئے ہیں جنہیں میں ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ سیدہ کی بات ہے، بندے کا کام ہی نہیں ہے بطول کو سمجھے۔ کہہ رہا ہوں بطول کی شان میں، چونکہ تقابل نہیں کرنا حسین کی ماں کا، علی کا بھی نہیں کرنا کسی کے ساتھ، نطفے کی پیداوار کے ساتھ علی کا مقابلہ، گندے لوگوں کے ساتھ انما یرید اللہ کا تقابل، جو قدم قدم پر ہم نجس ہو جانے والی مخلوق ہیں۔ ہم اپنے ساتھ علی کو سوچیں گے کہ ہمارا نہیں، بطول کہاں پہ کھڑی ہے؟ ایک جملہ ہے، بس اسی کو نوٹ کر لینا، اپنے سے، بس اس سے آگے میں نہیں کہہ سکتا، اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں بطول نہیں آتی۔ بطول کو سمجھنے کے لیے بطول سے اوپر ہونا پڑے گا۔ کیا بات ہے بھائی جان آپ کی؟ یہ جو 5-7 ہاتھ اٹھے ہیں نا میرے اس جملے پر، یہ مہر لگ گئی ہے۔ چونکہ آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا، میں کس کس میں پڑھتا جا رہا ہوں مالک تو جانتا ہے، چھٹے مولا سے پوچھا گیا، بڑی آپ نے توجیہ، تشریح، تعریف علماء سے سنی ہوگی، ایک نوکر سے بھی سن لو۔ چھٹے مولا سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کی جدہ مقدسہ کا نام فاطمہ رکھا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس پر بڑی توجیہ آپ نے سنی ہوگی، جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں وہ سیپ میں دے رہا ہوں، ٹوٹ گئی تو تمہارے لیے موتی ہے، ورنہ مجھے سیپ ہی واپس کر دینا۔ یہ جناب کا ہے، اسے توڑ لو تو موتی دیکھ لو، میں موتی نہیں دوں گا، دوں گا سیپ۔ سرکار فرماتی ہے چونکہ فاطمہ فاطم سے نکلا ہے، فے تو میم، اس کا مصدر فاطمہ ہے، سمجھنا۔ فرماتے ہیں فاطم اس بچے کو کہتے ہیں، مولا میری مدد کرنا کہ یہ سارے سمجھ جائیں، فاطم اس بچے کو کہتے ہیں عربی میں جس نے ابھی ماں کا دودھ چھوڑا ہو، اور بچے کے دودھ چھوڑنے کی مدت 2 سال ہے، 2 سال سے اوپر ایک لمحہ بھی بچہ ماں کا دودھ نہیں پی سکتا، قرآن نے منع کیا ہے۔ یہ بھی علماء سے پوچھنا کہ کیوں نہیں پی سکتا 2 سال کے بعد، چونکہ 2 سال کے بعد شعور آتا ہے۔ سر مارنے والے کو کیا پتا کہ جعفر کیا کہہ رہا ہے، سونا لگتا ہے علی والا سونا نہ کی پتا کہ میں کی کہہ رہا ہوں، وہ بھی آتا ہے، کہو تو سنا ماں۔ فاطمہ سے بچے کو کہتے ہیں، اگر قیمت مل گئی پوری تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ 15 منٹ ہو گئے مصاحب کا جملہ یا علی مدد، پھر آگے نہیں بیچا جائے گا، دل ہی ٹوٹ جائے گا، دکان بند، ناراض نہیں ہوگے۔ یہ حسن نے
मेहरबानी की है, लेकिन मेरे बात वहीं पर है, सारे देख रहे हो, सुन भी रहे हो, दुआ देना मुझे। फातिमा उस बच्चे को कहते हैं जिसने अभी माँ का दूध छोड़ा हो, बेशऊर 2 साल का बच्चा, कितना शऊर रखता है माँ का। मुझसे ना पूछ, खुद पे सवाल कर। 2 साल के बच्चे को क्या पता होता कि माँ की अहमियत क्या है। सरकार फरमाते हैं बस जितना 2 साल का बच्चा माँ की मार्फत रखता है, इतनी सारी खुदाई मेरी दादी की मार्फत रखती है। आसिफ जलाली नु गाला कट्टा ते दाद लवा। मौला की कसम है, देखो साहब मेहरबानी, कभी मार्फत के जीने भी तय कर। आले मोहम्मद से रिज्क मांगता है, कभी आले मोहम्मद से आले मोहम्मद मांग। रोटी मांगने वाले सारा जहान है, अली वालों को चाहिए सिर्फ अली की मार्फत मांगे। क्योंकि आपके बारे में मौला का फरमान है, जो हमसे सिर्फ रिज्क मांगता है ना पैसे, ना हम उसे दीन देते हैं ना दुनिया। और जो हमारा शिया हमसे हमें मांगता है, हम उसे दुनिया भी देते हैं फिर दीन भी देते हैं। अभी थोड़ा सा और बुलंद हो, मेरा दिल कर रहा है। अगर सैयद आज सुनना है यार, बंद कर मोबाइल यार, वो आवाज नहीं आ रही। अब आवाज नहीं आ रही तो पहले की सेटिंग है भाई, फिर हमें नहीं आएगी। जागना सरकार। तो अल्लाह अपने महबूब से कह रहे हैं, हबीब तू इनके तानू से ना घबरा, हमने तुझे फातिमा अता की है। अता है, जज़ा नहीं है। यार 5-7 बंदे ही बच गए, बैठ जाए सर। एक तो मुख्तसर मौल और ऊपर से वो भी इधर उधर का, क्योंकि फिर लाइन कट जाएगी, मगर नाराज ना होना। हमने तुझे सैयदा अता की है। अब यहाँ पर सवाल किया जाए, ये हो जाए कि 4 बेटियों वालों पर बहस की जाए तो फिर तुमसे दाद ली जाए, सैयदा की सदाकत पर बहस की जाए फिर तुमसे दाद ली जाए। यार 4 हैं, 4000 हैं, 10,000 हैं, जितनी भी बनाओ, मुझे इसमें क्या फिक्रमंद होना चाहिए। वो सरकार की अल्लाह करे जितनी बेटियां हों, जो जितनी मान सकते हैं मानी जाए, हम एक ही मान लेना, वो बड़ी बात है। अभी ऐसा ने मुझे कहा, कुछ लोगों ने कहा जिन्ना मा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा में जमा का सीगा है। ये कुम है, कुन्ना नहीं है। कुम मुज़क्कर के जमा का सीगा होता है। क्या बात है, क्या कुन्ना मुन्नस के लिए। वाह वाह। अगर औरतें ज्यादा हों और मर्द थोड़े हों तो फिर कुन्ना कहा जाएगा। अगर मर्द ज्यादा हों और मस्तूरें थोड़ी हों तो फिर कुम कहा जाएगा कि तुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके दाद ले? तो यहाँ अल्लाह कह रहा है अन कुम, इसका मतलब है मर्द ज्यादा है, मस्तूर थोड़ी है। तो है ही ऐसे कि 4 मर्द हैं। जो सवाल करता है उसे दाद भी देनी चाहिए। सवाल करना आसान है, जवाब सुनने के लिए बर्दाश्त होनी चाहिए। इसलिए सरकार ने फरमाया कि जहल से गुफ्तगू ना किया करो, तो पहले तुम्हारे साथ उलझेगा, फिर वो हारेगा, जब हारेगा तो फिर तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। इसलिए जोहला से मेरा खिताब नहीं है, पढ़े लिखे चेहरे मेरे सामने बैठे। हबीब हमने तुम्हें सैयदा अता की है। अता और जज़ा में फर्क होता है सर। मजदूर की मजदूरी मुल्तान में 1000 रुपया दिहाड़ी और महंगाई का जमाना है। आपने शाम को उसको गिनकर 100 के 10 नोट उसके हाथ पे रखे, तो ये जज़ा है। उसने सारा दिन जनाब की ईंटें उठाई हैं, शाम ने आपको उसको 2000 दिया है। 1000 जज़ा है, 1000 अता है, यानी हक से ज्यादा देना अता है। यार जो पहुंच गए हो गाजी का वास्ता वो तो बोल पड़ो, सदा सुखी रहो जो जवान खुश हो गए। हाथ बुलंद कर लो हैदरी। हक के मुताबिक देना जज़ा है, थैंक यू। हक से ज्यादा देना अता है।
अपने महबूब से अल्लाह कह रहा है इन्ना आताइना कल कौसर, हबीब हमने तुझे सैयदा अता की है, सरा से सुरैया तक जन्नत कौसर तस्नीम सलसबील 18,000 या 80,000 या 10,000 जितने भी जहान है, ऐ मेरा महबूब मैंने तुम्हें जजा में दिए, लेकिन सैयदा मैंने तुम्हें अता में दी। अल्लाह अकबर यार, सदा सलामत रहे जो खुश हो रहे हैं बतूल के इसमें मुबारक पर। हम थोड़ा सा इधर उधर हो जाए ना तो ये हम पर गुस्ताख हो जाते हैं। हम गुस्ताख नहीं होते, जनाब का हाजमा कमजोर है। जी 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 जी, जनाब का हाजमा कमजोर है। शिया किताबें पढ़ते हो, शिया बुक्स पढ़ो, शिया लाइब्रेरियों को छानो, बिरादरान इस्लाम की किताबें ज्यादा पढ़ते हो तुम शिया। की करना जो ना चू नहीं, बस क्या करना है, वो भाई पढ़े, जनाब अपनी बुक्स पढ़े ताकि तेरी मार्फत में इजाफा हो। जो मासूम के फरन तू नहजुल बलागा भी पढ़ लेना, कोई काफी है। वाह वाह, तो तुझे कभी नहीं पूछना पड़ेगा कि अली को कहां कहां पढ़ो। ये तो हर घर में होनी चाहिए। हबीब हमने तुम्हें सैयदा अता की है। जिंदगी का कोई पता नहीं, कोरोना से बंदे मार रहे हैं, अच्छा खासा हॉस्पिटल जाते वापसी मर के आता है। हम सैयदा के नाम पर कुर्बान हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो हक है वो हक है। पहले तो यहाँ पर एक बंदा भी बोल पड़ा तो मैं पूरे मुल्तान से राजी, जो लाइव सुन रहे हैं उन पे भी राजी। बंदा सिर्फ मेरे सामने एक बोल पड़े। अल्लाह क्या कह रहा है, इन्ना आता है ना कल कौसर, हबीब हमने तुम्हें बतूल अता की है। ये नहीं कहा कि मैंने अता की है। एक जिसका फेफड़ा ठीक है भाईजान वो तो कम अज कम बोले ना यार, आवाज फेफड़े से जोर से निकलता है दरी। जमा का सीगा है, फिर हमें कहते हैं कि ये मुशरिक हैं, ये अल्लाह के साथ शरीक बना रहे हो। शरीक नहीं बना रहे, अल्लाह के साथ शिर्क इबादत में हराम है कि वो माबूद ला शरीक है। बाकी काम है, अल्लाह रिज़्क देता है, तो मिकाइल भी शरीक है। बिल्कुल जो चुप कर गए हो, मिकाइल रिज़्क बांटता है, कुरान कह रहा है, सारे मौलवी मान रहे हैं यार। तो रिज़्क देना अल्लाह का काम है, उसके फेल में शरीक तो है ना, अल्लाह की जात में शरीक नहीं, उसके फेल में शरीक है। रूह अल्लाह निकालता है, लेकिन आता इज़राइल है, अल्लाह के फेल में शरीक है। यार क्या बात है, ये 2-4 जवान है जो मुझे छेड़ी जा रहे हैं, बाकी जो है चलो फिर मौला आपको भी सलामत रखे। तो सरकार है, मिंबर की कसम मैं लाइव कह रहा हूँ, फिर किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, अब क्या करें, हमारी अच्छी लगनी नहीं किसी को। हम अच्छा भी कहें तो बुरा ही लगेगा, लेकिन लगता है तो लगे। आपके साधक मौला से पूछा गया, मौला अल्लाह अहद है, फिर कहता है हम, वो अहद हो के हम कैसे? सरकार फरमाते अल्लाह लफ्ज़ हम उस वक्त इस्तेमाल करता है जब उसके किसी काम में हम 14 में से कोई एक शरीक हो, या हमारे घर में से कोई शरीक हो। फेल में, इबादत में नहीं, ला शरीक है वो अहद है, वाहिद भी नहीं। वाहिद वो होते हैं जिसके 2 हो सके, जो तकसीम हो जाए। अहद वो होता है जो नाकाबिल तकसीम हो। और ये भी आपके मौला अमीरुल मोमिनीन से तनवीर नकवी साहब पूछा गया कि मौला अल्लाह एक है, फरमाते बिल्कुल एक है। उसने फिर कहा मौला अल्लाह एक है, फरमाया तुझे पहले भी बताया एक है। उसने फिर कहा वाकई मौला अल्लाह एक है, फरमाया मैं तेरे अंदर को जानता हूँ, वो ऐसा एक है जो गिनती में नहीं आता। क्या करें सर, 1 2 3 4 इस गिनती में वो एक नहीं आता। ऐसा ला शरीक है, लेकिन फेल है
जिस तरह मूसा के साथ बोला आग के जरिए, बेशक 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 आग से आवाज आई थी कि मैं तेरा रब हूँ, तो अल्लाह माफी दे, आग रब थोड़ी है। अल्लाह ने जरिया बनाया कि मूसा से कलाम करनी तो है। फिर शर्म नहीं आती, डूब के मर जाने का मकाम है, दुनिया आखिर तक चली जाई है, 12वां ज़हूर तशरीफ ले आने वाला है, काबे की छत सजने वाली है, जुल्फकार नयाम से बहर आने वाली है, फिर तुझे कौन बचाएगा मौलवी? ओए आग के जरिए मूसा से बोले तो तेरे बारे में है, मोहम्मद के साथ अली के लहजे में बोले तो नहीं बारे में। आप ये बजा जी, भजन सही की खुशहाली आजत रवाली शेरे खुदाली, हर कूचा हर गली अली अली बोल, हम नाविक बोल, याली 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 नारे बस करे का हो तो माशाल्लाह माशाल्लाह अभी तो स्टार्ट हुआ। तो अगर हम कुछ बोलें फिर हम काफिर हो गए। तुम खुद अली के फजाइल पढ़ते रहो, वही हम पढ़ते हैं जो जनाब पढ़ते हैं, लेकिन अंदाज अपना अपना है। हमारे यूं यूं करने से बस डर रहे हो और कोई मसला ही नहीं है। हाँ मौलवी के समय नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वरना वही पढ़ा जा रहा है जो उलमा ने लिखा है। तो फिर आओ तनवीर नकवी की बात को पूरा करें। इस हम में अल्लाह के साथ कौन है? हमने सैयदा अता की है। इस हम में मुस्तफा तो हो नहीं सकते क्योंकि उनको अता हो रही है। तो देखो पिछले बंदे बोल पड़े। इस हम में कुमैल कैस भाईजान हसन सर बोला जिंदगी अली भी नहीं हो सकते क्योंकि अपनी अता से निकाह कैसे होगा? इस हम में हसनैन भी नहीं हो सकते, बेटे हैं, वो कैसे अता करेंगे? जब हसन और हुसैन तक नहीं हो सकते तो फिर सजाद मेरे सरकार से लेकर 12वें तक कोई भी नहीं हो सकता। अपने अपने किचन में बैठ के ना जाफिर को मुशरिक कहना आसान है। रोटी पकाती बीवी क्या कह सकती है बेचारी? उसके सामने मैं जाके कहूँ जी मैं मुल्तान पढ़े, कोई पढ़ ही नहीं सकता, हो सकते ठीक है। क्या बात, वो बेचारी क्या कहेगी? महकूमा जो हुई हमारी। लेकिन बात मैदान में पता चलती है। तो फिर जुल्म के दश्त में अपनी तहकीक के घोड़े को दौड़ाओ। जब तुम्हारी तहकीक का घोड़ा थक जाए तो फिर हुसैन के जिक्र में आना। तुम्हें हम बताएंगे हुसैन के जाकर के हम में अल्लाह के साथ कौन है सिवाय खदीजतुल कुबरा के। मेरे बच्चों सलामत रहो जो हाथ हुसैन की नानी को सलाम कर रहे हैं। सिवाय मलिकातुल अरब के हुसैन की नानी के दस्तरखान की प्लेटें बेच बेच कर महल्लात बनाने वालों, आज उसी की बेटी को कहते हो कि वो खता पे थी। खुदा का वास्ता जागना, ये बहस ही नहीं है। दुश्मन को मारो, मौला का फरमान है। अगर उसे मारना चाहते हो तो उसका जिक्र छोड़ दो। सुभान अली जी, आप जी हैं जी, क्या कत्ल करने का तरीका, वाह वाह वाह। उसका तस्करा ही छोड़ दो, खुद ब खुद ही मर जाएगा। यार मैं इतनी बड़ी बात की है, ये मुझे याद ही कोई नहीं कर रहा। लानत ही भेज सकते हैं तेरे। ये जमाना साबित करने वाला नहीं है, मानने वाला है। ये दौर गुजर रहे ना, साबित हो चुकी है हर चीज। अब जो जिसको मान रहा है वो जाहिर उसकी तारीफ करेगा। तुम अपनी सैयदा की बातें करो।
जागना सरकार। अल्लाह कहते मैंने और खदीजा ने मिलकर तुझे सैयदा अता की है। फसल्ले ले रब्बे का वानहर, अपने रब की सलात भी पढ़। ये बतूल दे कर कह रहे नमाज पढ़, वो वैसे पढ़े तो कहते थोड़ी पढ़। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम्मिल लैला इल्ला क़लीला, हबीब तेरे पाँव पे वारम आ जाते हैं, मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती, कम पढ़ा कर। यहाँ बतूल देकर कहते हैं नमाज पढ़ और कुर्बानी दे, यानी दोनों काम साथ करने हैं। क्या याद करोगे मेरे जवानों, सीने पर नहीं रूह पर लिख लेना, और हर लफ्ज मेरा जब याद है मातम मेज़दारी में नौकर को दुआ दे देना। नमाज पढ़ और कुर्बानी दे, दो काम इकट्ठे नहीं हो सकते। जहान में बंदा ही नहीं जो नमाज भी पढ़ रहा और कुर्बानी भी दे रहा हो। इस मोहम्मद के हक को करबला में हुसैन ने अदा किया है, नमाज भी है। क्यों दांत थोड़ी दी है इस पर? नहीं, इस पर मसाहब की बात नहीं है सर, ये कुरान की तफसीर हो रही है। और किसी किताब से मुझे साबित करो कि वो असर की नमाज पढ़ रहा था हुसैन, मैं जबान काट दूंगा अपनी। कोई नमाज का सजदा नहीं है। चूंकि दुनिया ने जब हुसैन के 9 घंटे के काम देखे तो दुनिया ने फैसला कर लिया ये अल्लाह है, बंदा नहीं है। हुसैन ने सर सजदे में रख दिया, नहीं मैं उसका अब्द हूं। और ना 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 ना, अब मैं अपने आप को वाहवा करूंगा, तुम्हारी थोड़ी वाहवा से मेरा जुमला जख्मी हो जाएगा। और जिंदगी में 25 साल की हुसैन की नौकरी में पहली दफा मैं छोटे से और खलील से और इलीट क्लास मजमे में जुमला कह रहा हूं। लाइव चल रहे हैं, वाहवा 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 वाहवा। जब हुसैन ने 9 घंटे के बाद मखलूक के जहन को बदलते हुए देखा कि ये मुझे अल्लाह कहने लगे हैं, हुसैन ने सजदा करके साबित कर दिया मैं अब्द हूं, वो माबूद है। जब हुसैन ने वहां माबूदियत उसकी बचाई तो फिर अल्लाह ने कहा अब तू सिर्फ अब्द नहीं है, तू अबू अब्द है। जो जो अब्द है उसका मालिक हुसैन है। हुसैन चूंकि उसका फरमान है, अल्लाह का हदीस कुदसी है, अब्दी कुनली अकुनलक, जो मैं कहता हूं वो तू कर, फिर जो तू करेगा वो मैं करूंगा। फिर ये अलग एक बहस है, फिर एक खमसा 10 दिन पहले बैठना पड़ेगा इस पर भी। हबीब हमने तुम्हें सैयदा अता की है, रब की नमाज पढ़ और कुर्बानी दे। इन्ना शानिया का हुआ अब्तर, जो तेरा दुश्मन है वही बेनस्ल है। और आपके 11वें मौला से सवाल किया गया, मौला अल्लाह कह रहा है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद का दुश्मन बे औलाद मरेगा, और उनके 11 बेटे हैं। मुस्कुरा के सरकार अस्करी फरमाते हैं उनकी गलत फहमी है कि वो कहते हैं हमारे हैं। एक दफा हाथ चौचा है दरी। वाह 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 वाह। वो भी तो फातिमा ही है जो कुंभ वाली मखदूमा है जी। उसे कहा, बीबी को कहा जाता है रहीलत तो ज़हरा। अब इसके 2 मानी किए जाए, या बतूल की खुशबू या बतूल जितनी इज्जत वाली। और हजरत खुमैनी ने जो जुमला दोनों फातिमों के बारे में लिखा है वो सुनाऊं तो याद, आप मुझे मार देंगे, चलो मारते हो तो मार लेना। खुमैनी साहब ने किताब है उनकी बुस्तान इमाम, उनकी कलाम है, शायरी कलाम है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद वाली कुरान में सूरत ना होती तो फिर खुमैनी कहता कि जन्नतुल बकी वाली और कुम वाली ये दोनों फातिमा किसी बंदे की नहीं, अल्लाह की बेटियां हैं। अब हू कर गए हो, सूरत वजह तो बच्चा था जी 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 के शान पे खड़ी हैं इस घर की मस्तूरात। दुनिया के चबल चबल बंदों को क्या पता कि फातिमा क्या होती है। जो जिसको यही नहीं पता कि वजू कैसे किया जाता है, हक क्या होता है, उसे क्या पता कि सैयदा की क्या शान है।
मौला की इज्जत की कसम है, ये दोनों दादी और पोती, ये उस क्योंकि ये कुम जो है, कुम ये 12वें का शहर है, सरकार कायम मौला का शहर है। क्योंकि जब सरकार मेराज पर गए थे तो अल्लाह ने अपने महबूब से कहा था कि हबीब ये मक्का मेरा हो गया, मदीना तेरा हो गया, नजफ अली का हो गया, करबला हुसैन का हो गया, जन्नतुल बकी सैयदा की हो गई, तो जो तेरा आखिरी होगा 12वां उसका शहर कौन सा? रसूल ने फरमाया मालिक जो तेरा दिल करता है दे दे। ने कहा नहीं जो तू पसंद करे। वहीं बैठकर हुसैन के नाने जमीन पर निगाह की, जहां आज कुम है यहीं पर निगाह पड़ी। रसूल ने फरमाया ये खित्ता मेरे बेटे के नाम लगा दे। अल्लाह ने कहा इसका नाम भी तू रख दे। तो रसूल ने वहीं बैठ के नाम रखा कुम। कुम का माना है उठ, तो यहीं बना बनाया शहर ज़ाहिर हुआ। शहर बनाने के लिए मिस्त्री, मजदूर, ईंट, गारा, चूना, प्लस्तर, इससे ये सब कुछ चाहिए, फिर शहर बनता है ना। तो जिनके शहर कुन से हैं वो तेरे जैसे पैदा होते हैं। जिनके शहर कुन से क्यों छेड़ी जा रहे हो? समेट के करीब है सरकार। गर्मी भी होगी, हबस भी आपको तंग करेगा। करीब आ गया हूं मैं आपके। ए वाहिद जोड़ा है अली और बतूल का जो बराबर है। बतूल अली के घर में महकूम बान के नहीं आई, बराबरी पे आई है। बेशक बेशक जी सुभान अल्लाह। आपको मैं सलाम कर रहा हूँ। ततहीर के सहन में बतूल बर्तन धो रही हैं, चंद कदमों के फासले पर अली जुल्फकार मांज रहे हैं। वहां बर्तन मांजते मांजते सैयदा, वहां जुल्फकार अली मांज रहे हैं। अली मुस्कुराए, बस अली मुस्कुराए, वहां सैयदा मुस्कुराई। पूरा 2 सफ़हात का मकालमा है अली और बतूल का। वो 2 सफ़े तो नहीं सुनाए जा सकते, 17 सुनाई जा सकती है। तो शाह नजफ ने वहीं बैठकर पूछा उम्मुल हसन, हसन की माँ, जी मौला बात तो ऐसी कोई नहीं हुई, मुस्कुराने का सबब? हाथ बांधकर ततहीर कुल ने कहा इमाम कुल के सामने कि मौला पहले तो आप मुस्कुराए हैं। सरकार ने कहा फातिमा मैं तो इसलिए मुस्कुराया हूँ, अब कितना जोर लगाया जाए यार। बतूल मैं इसलिए मुस्कुराया हूँ कि जिन हाथों से मैं जुल्फकार मांज रहा हूँ इन्हीं से मैंने आदम बनाया है। अब ये बात किसी से बर्दाश्त नहीं होगी। अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है शैतान से मां माना कान तस्जुद अलैमा खलक तो बेयदैया, उसे सजदा नहीं करता। या फिर कोई 2 हाथ ऐसे ले आओ जिन्हें अल्लाह कहे ये मेरे हैं, सिवाय अली का अल्लाह ने किसी को नहीं कहा। तो चलो जब तक नहीं मिलते तब तक अली पे गुजारा करते जाओ, जब मिल जाए तो ले आना। थकना नहीं है भाई। अली फरमाते इन्हीं हाथों से मैंने आदम को बनाया है। ततहीर की चादर पहले सर पे थी, संभली हुई चादर को संभाला। यार ये भी बात मुल्तान में समझानी पड़ेगी। संभाल कर उठी अली के सामने, आगे खड़ी हसन की माँ। कहते या अली कनीज सवाल पूछने आई है। अली के साथ पहले ऐसे कोई बात करके देखे। छोटे बंदे के बराबर बात खड़ी है, जो किबरियाई का बदन रखता है उसके बराबर खड़ी है। अली वजहुल्लाह है, बतूल हिजाबुल्लाह है। कोई तो बारीकी समझे यार। वो अल्लाह का चेहरा है, ये अल्लाह के पर्दा है, और पर्दा हमेशा चेहरे का ही होता है। करीब आ गया, सिमट गया जाफर। बीबी अली फरमाते कौन सा सवाल पूछने आई हो? बीबी कहती आपने कहा कि इन्हीं हाथों से मैंने आदम बनाया, तो बनाया है। बीबी कहते फिर कनीज पूछनी आई है कि आदम को तो यार चलो कर ही लेते हैं, आदम को तो आपने बनाया है, हव्वा को किसने बनाया? अली फरमाते हैं बतूल आना इब्नु सफा, मैं सफा का बेटा हूँ। सफा से मुराद ये पहाड़ी नहीं, सफा स्वाद फे छोटी ये ऊपर खड़ी जबर, ये मस्दर है मुस्तफा का।
جہاں سے مصطفیٰ بن بن کے نکلے اسے صفا کہتے ہیں. کیا بات ہے واہ بھائی واہ. کیا بات ہے گاڑی کیا بات ہے جو پہلے ایک بنتا چلو ایک تو بول پڑا نا. علی کہتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو مصدر مصطفیٰ ہے. بیوی کہتی ہے انا بنت منزلہ کعبہ قوسین او ادنا. میں اس کی بیٹی ہوں جس کی منزل کا نام کعبہ قوسین یا اس سے بھی آگے. علی فرماتا چلو بطول بیٹھو میں تمہیں وہ بتاؤں جو ہو چکا ہے وہ بتاؤں جو ہونے والا ہے. مولا کی منبر کی قسم سید جتنے بیٹھے ہو راضی رہنا. وہیں سے اٹھی اپنی جگہ پر جا کر تشریف فرمائی. حسین کی ماں علی کو دیکھ کر کہتی ہے گستاخی ورنہ تشریف آپ میری طرف لے آئیں. علی کہتے ہیں میں کیسے تمہارے پاس آ جاؤں. بی بی کہتے ہیں ناراض نہ ہوں آپ کے 2 دعوے تھے میرے 3 ہیں. آپ نے کہا وہ بتاؤں جو ہو چکا وہ بتاؤں جو ہونے والا ہے. آپ میرے پاس ہیں میں آپ کو وہ بھی بتاؤں جو نہیں ہوگا. غازی کا واسطہ جو بطول کے حق میں تشریف فرما ہو حیدری جو سیدہ کی عزت میں بیٹھے ہو ان سے میں ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ میری 25 سال کی محنت ہے اور حسرت 25 سال کی ہے. لاکھوں کے مجمع میں یہ جملے پڑھے لیکن داد نہ ملی کسی نے قیمت ہی نہ دی. آج اتنے تھوڑے سارے بیٹھے ہو یار موتی ہیرا بیچنے لگا ہوں. ہیرے کے خریدار کوئی لاکھوں تھوڑے ہوتے ہیں 1-2 ہی ہوتے ہیں. 1-2 بندے ہی چلو قیمت دے دینا. علی نے کہا بطول میں مسجود علم ہوں مجھے علم نے سجدہ کیا ہے تو میرے سامنے اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے. پہلا لفظ یہی ہے جسے ایک بندہ بھی سمجھ جائے. ہاتھ باندھ کہتے یا علی اس لیے دعویٰ کر رہی ہوں علی سے کہہ رہی ہے آدم سے نہیں. آدم سے تھوڑی بہت خود ہو رہی ہے. نقوی صاحب کی نوح موسیٰ عیسیٰ سے گفتگو نہیں ہو رہی جناب سیدہ کی علی سے ہو رہی ہے جو سلطان اعظم ہے جو کون کا مالک ہے جو امام مبین ہے جس کے سینے میں کائنات سموئی ہوئی ہے جو کون سے پہلے بھی جانتا ہے کون کے بعد بھی جانتا ہے کون اور کاف اور نون کو بھی جانتا ہے اس کے درمیان جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے. خدا کا واسطہ آگے کا سفر کرو. علی سے کہہ رہی ہے علی اس لیے دعویٰ کر رہی ہوں کہ آپ کے اور میرے دنیا میں آنے کے جو طریقے ہیں وہ جدا جدا ہیں. خوبصورت بات ہے. جبریل بھیج دے جو ملتان والوں کو یوں یوں کرے. علی کعبے میں آیا ہے اسے کہہ رہی ہے آپ کے طریقے آنے کا اور ہے دنیا میں میرا اور ہے. سب کو جاننے والے علی نے جان بوجھ کے پوچھا وہ کیسے. بی بی کہتے یا علی آپ پیشانی آدم میں رہے ہاں پیشانی شیش میں چمکے ہاں پیشانی تارخ میں آئے پیشانی ابراہیم میں آئے پیشانی اسماعیل میں آئے پیشانی قلاب میں آئے پیشانی قصا میں آئے پیشانی سفر کرتے کرتے پیشانی ہاشم میں آئے پیشانی عبد المطلب میں آئے پیشانی ابو طالب میں چمکے پھر آغوش فاطمہ بنت اسد میں چمکے. نہ ملے گی قیمت اور کیا چاہیے بطول تو راضی ہو جائے گی. علی فرماتے بالکل. بی بی کہتے تیری ولایت کی قسم میں نے یہ سفر نہیں کیے. اب بولے ہو ملتان والوں غازی کی قسم ہے اب پہنچے ہو ملتان والوں مولا کی قسم. یہ ہے سیدہ کی عزت. آصف جلالی حرامی کو کیا پتہ کہ سیدہ کی شان کیا ہے. الہی آمین. ساری کالونی کو پتہ چلے پھر مزہ آئے گا اور جو نعرہ لگائے گا وہ من کی مراد آج علی و بطول کے ساتھ. الہی آمین. یا علی راضی ہو گیا بھیا. کم وقت بھی نہیں پڑا کہ میں تھوڑا مجمع دیکھ کر رکھا کے چلا جاؤں. مجرم بنتا میں آل محمد کا کیونکہ نمک کھاتے ہیں اسی کا. بندہ ایک ہو یا 10,000 ہو جب ممبر پہ بیٹھ گئے تو پھر اس کے کچھ حقوق ہیں. یا علی میں نے یہ سفر نہیں کیے. علی فرماتے ہیں پھر کیسے. کہتے ہیں یا علی جان بوجھ کے آپ نہ سوال کر رہے ہیں ویسے اس بات کے آپ اکیلے گواہ ہیں.
کو میں فراز شاہ سلام کر رہا ہوں، جو نہیں پہنچا وہ میری انگلی پکڑے، میں اسے چلنے کا ڈھنگ سکھاؤں۔ علی فرماتے میں گواہ کیسے؟ بی بی کہتے یا علی جب بابا معراج پر گئے تھے، ہاں یا علی بابا جنت کی سیر میں جنت میں داخل ہوئے۔ علی فرماتے بالکل ٹھیک ہے، جنت میں ایک سیب کا درخت تھا، ایک حرف بھی کتاب سے باہر نہیں، اس پر ایک سیب لگا ہوا تھا۔ بابے کا جی چاہا میں سیب کھاؤں، اللہ نے کہا تجھے پوچھنے کی بات ہے، تو مالک ہی مالک ہے، کھا۔ بابا نے سیب توڑا، آدھا کھایا، آدھا غائب ہو گیا۔ یہ مجموعہ دعا کے میرے سر پر ہے۔ علی فرماتے ہیں پھر آدھا کدھر گیا جو کھایا، جو آدھا غائب ہوا وہ کدھر گیا؟ چادر اتار کرنا شاہ نجف کی نالین پہ رکھ کے کہتے یا علی پتہ نہیں کیا طلسم ہے تیری ذات میں، ان دونوں حصوں کا تو علی اکیلا مالک ہے، آدھے کی میں بنی، آدھے کی تیری تلوار بنی۔ ذوالفقار کو تھینک یو بھیجان، جو ابھی تک آپ مجھے واہ واہ کہہ رہے ہیں، تنویر نقوی سے لے کر وہاں تک جس کا جی چاہے تو بولے، نہ جی چاہے تو میں راضی، تم پر بطول راضی، علی راضی۔ ایک جملہ پتہ نہیں حسن تیرے گھر میں آ کر مجھے جملے القا کہاں سے ہو رہے ہیں؟ دنیا نے یا جناب نے علی کی ذوالفقار کو لوہا ہی سمجھا ہوگا نا، اور کوئی تاثیر تو اس لوہے میں ہے کہ اسے معصوم کے علاوہ کوئی چلا نہیں سکتا۔ کچھ تو ہے نا۔ آپ سلامت رہو، آپ جیو، آپ سلامت رہو۔ کیا معرفت والے لوگ مل گئے جیو پہ خالہ بس دے رہو، جوڑا ہاتھ پہ چپ دے خیرات پہ گن دے، جوڑا نہیں چاندہ پہ مولا اسے بھی خیرات دے۔ اسے لوہا نہ سمجھ، اس میں کچھ اور تاثیریں ہیں۔ علی اور بطول ختم ہوگی پڑھائی، یہ برابر کی جوڑی ہے، مولا کی قسم ہے، سیدہ کی عزت کی قسم ہے۔ انما یرید اللہ گواہی دے رہی ہے، چادر تطہیر گواہی دے رہی ہے، صداقت بطول پہ اللہ گواہی دے رہا ہے۔ اے بطول کا مقدمہ دنیا داروں کو کیا خبر، قیامت کا دن لگے گا، بارگاہ خدا میں لگے گا، اور سب سے پہلا ہی لگے گا۔ کم از کم بطول کا جو مقدمہ سنے وہ خدا ہونا چاہیے۔ بے حیا زمانے کو کیا پتا کہ سچا کون تھا۔ اللہ اکبر۔ سلام ہے یار آپ کو جو ہے کرنے بھی لگ گئے، میرے سلام قبول کرنا۔ بطول کا مقدمہ وہ سنے جس کا بدن ہی نہ ہو، بطول کا مقدمہ وہ سنے جو آنکھیں نہ رکھتا ہو۔ بطول اس عدالت میں پیش ہونے چاہیے جس عدالت میں ظاہری جسم رکھنے والا کوئی نہ ہو۔ مسلمانوں تمہارے دربار سے خالی ہے یا روتی ہے، تمہیں کیا خبر کہ کون روتی گئی؟ آج تک تم سے اپنی بیٹیوں کے مسئلے حل ہو گئے ہیں، محمد کی بیٹی کا مقدمہ حل نہیں ہو رہا۔ مفسر قرآن لکھوا کر بھی کہہ رہے ہو کہ بطول معاذ اللہ خطا پر تھی۔ 40 قرآن کی آیتیں پڑھی تھی مسلمانوں کے دربار میں، اور ایک حدیث مسلمانوں نے پڑھی تھی کہ محمد کا وارث کوئی نہیں ہوتا۔ محمد کی بیٹی نے پوچھا تھا اس حدیث کا راوی کون ہے؟ کسی نے کہا میری بیٹی راوی ہے۔ بطول کہتے پھر شرم نہیں آتی، اپنی بیٹی کی حدیث مان رہا ہے، میری حاجت جھٹلا رہا ہے۔ اور آج تک جو پڑھا گیا ہے، جو ہاتھ سینے پر مار رہے ہو، میرا سلام ہے ان ماتمیوں کو، نسل تمہاری سلامت رہے۔ ایسے ماتم نہیں ہوتا جب تک پردے والی ماتم کی مالک خیرات نہ دے۔ راضی ہے تم پر حسین کی زخمی بہن جو آپ سینے پر ہاتھ مار رہے ہیں۔ یہ جو 4 گھنٹے پڑھا جاتا ہے نا کہ فاطمہ 4 گھنٹے کھڑی رہی، میں بھی یہی پڑھتا تھا کہ بطول 4 گھنٹے کھڑی رہی، ہے کتابوں میں، لیکن جب سے ایک روایت میں نے پڑھی ہے نا کتابوں میں، میں نے 4 گھنٹے یعنی وقت کا تعین پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کتنی دیر کھڑی رہی، بس اتنی دیر کھڑی رہی۔ حسن نے ماں کی چادر پکڑ کے کہا اماں میں تھک گیا ہوں، اماں
मुसलमानों से पूछ मैंने और कितनी देर खड़े होना। अम्मा ये तेरे पापा के उम्मती देख देख के हंस रहे। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। हौसला, सर पे जो हाथ मार रहे हो तुम्हारे मातम की गवाह बन रही है अली की बेटी। अल्लाह अकबर। तो नहीं पढ़ सकता, ये हसन की फरमाइश थी तो मैंने पढ़ा है। मैंने 3 जमात सानी के अलावा सैयदा की शहादत ही नहीं पढ़ी। शर्म आती है, पूछो क्यों नहीं पढ़ता? पढ़नी चाहिए। अगर छुपा के पढ़ूं तो बतूल नाराज होती है, सारी सुनाऊं तो फिर शर्म आता है कि मुसलमानों ने कैसे मारा है हुसैन की जख्मी माँ को। अल्लाह मान, अल्लाह मान। माफी दे देना, नरम दिल मोमिन बैठे हो मेरे सामने। किबला हुसैन का छोटा सा जाकिर हूं, माफी मांग रहा हूं आपसे। ये सामने लाइव चल रही है। इमाम हुसैन तुम्हें किसी का मोहताज ना फरमाए, और बतूल के जख्मों पर जरूर है किया करो जितनी कर रहे हो। चलो इतनी ही कर लेना, क्योंकि छठे मौला का फरमान है जो हमारी दादी का दरबार जाना भूल जाता है शिया, वो 10 मुहर्रम को ना रोया करे। बतूल ने सिर्फ अपना मुकदमा नहीं लड़ा, अली का विलायत का मुकदमा लड़ा है। क्यों मारा है मुसलमानों ने बतूल को? क्योंकि बाबा की शहादत के बाद रोजाना सुबह की नमाज के बाद हसनैन को साथ लेकर हर मदीने के घर का दरवाजा बजाकर बतूल कहती थी अली की विलायत को याद रखना। विलायत अली पर पहली शहीद होने वाली है मोहम्मद की बेटी। अल्लाह अकबर। एक जुमला सुन लेना, बस माफी दे देना। अगर सुन लिया और ज़रब लग गई और बतूल सैयदा ने खैरात दे दी उसकी कब्र के सदका में, जिसकी कब्र मदीने में जाके भी पूछनी पड़ती है कहाँ पे दफन है। गरीब से गरीब आदमी की बेटी मर जाए वो 20 साल के बाद भी बताता है मैंने यहाँ दफनाई थी। कभी मदीने जाकर ना मोहम्मद से पूछी सही तेरी बेटी की कब्र कहाँ है। उस बतूल का एक लफ्ज सुन लेना और फिर मुझे माफी दे देना। समझ में आ गया तो जो सैयद बैठे हो जरूर है करना, मैं ना समझा सका तो मुझे माफी देना। 2 किस्म के उलमा है बतूल के ऊपर जिन्होंने लिखा है। जो सैयदा तस्बीह नहीं पढ़ सकी हाथ के साथ, इस पर एक तबका उलमा का कहता है कि बतूल का हाथ जख्मी था इसलिए बतूल तस्बीह नहीं पढ़ सकी। वो मोहम्मद जैसे सुल्तान की बेटी है, वो इन्नमा युरीदुल्लाह की मिस्ताक सैयदा है। हाथ जितना भी जख्मी होता बतूल पढ़ती उसी हाथ से तस्बीह। बतूल को पता है तस्बीह की शान क्या है। लेकिन जो दूसरे उलमा के तबके ने बात लिखी है उसने खंजर मार दिया है। जाफर मर जाए तुम्हें कैसे समझाए। दूसरा तबका कहते हैं इसलिए बतूल इस हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ती थी कि बतूल का हाथ तस्बीह पकड़ने के लायक ही नहीं रहा था। मुसलमानों ने मार मार कर हुसैन की माँ का हाथ तोड़ दिया। अल्लाह मान, अल्लाह मान। इस मातम पर मैं बेटे कुर्बान कर दूं जो आप बेतहाशा बतूल की गुर्बत में कर रहे हैं। ये पुरसे आपके कबूल हो जनाब सैयदा की बारगाह में। एक जुमला सुन लो मेरी हसरत पूरी हो जाएगी। आप थक भी गए हो तो मुझे माफी देना, माफी दे देना मुझे। आपके उलमा ने लिखा है बाबा की शहादत के बाद 90 दिन या 75 दिन जितने दिन भी बतूल जिंदा रही, बुजुर्ग समझेंगे, जब भी बतूल के सामने अली और हसनैन आते ना बतूल अपना रुखसार छुपा लेती थी। अल्लाह तब तो उस वक्त उकदा खुला जब 3 जमातियों सानी को आधी रात के वक्त अली ने हुसैन से कहा आ माँ का सलाम कर मैं जनाजा उठाने लगा हूँ। कफन के बंद टूटे बतूल ने कहा ओ मेरा गरीब बेटा। हुसैन ने माँ के चेहरे को देखा जो अकबर की लाश पे चुप कर गया था ना। हुसैन कभी इस दीवार से टक्कर मारता है कभी इस दीवार से। अली सीने से लगा कर कहते क्यों टक्करें मारता है? कहते बाबा मुझे आज पता चला मदीने वालों ने तमाचे मारे हैं मेरी माँ को। ओ बाबा मेरी माँ का रुखसार जख्मी है। ओ बाबा मेरी माँ को बड़ा मारा।
अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यम मुनक़लिबि यनक़लिबून अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। मेरा मालिक ये मकबूल तरीन अज़ादार जो सैयदा की बारगाह में अभी तक मातम में मसरूफ है, मेरा मालिक इनकी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा। हुसैन की माँ की तुरबत का वास्ता मेरा अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा कर हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। मौला की इज्जत की कसम है, ये तुम पर खैरात हो गई है कि इस मौसम में और इतने थोड़े से लोगों में इतना पुरसा हो जाना। ये राजी है जो पर्दादारों में बैठी है, मेरी हुसैन की गरीब बेटी, जिसने, और अगर जुमला सुनते हो तो फिर एक और आपके इस है में इजाफा हो जाएगा। जनाब सैयदा ने जनाब ज़ैनब आलिया से कहा था, बेटा ये मेरा तबर्रुकात वाला संदूक देना, खंजर लगेगा मोमिन के दिल में। बतूल ने कहा, बेटा अगर मेरा हाथ जख्मी ना होता तो ज़ैनब में तुम्हें तकलीफ ना देती। 5 साल की आलिया ज़ैनब ने माँ के सामने संदूक रखा, बीबी कहती है खोलो। खोला, फरमाया ये मेरे तबर्रुकात तेरे हवाले। अंदर 2 छोटे छोटे ना कुर्ते पड़े हैं जिस तरह छोटे बच्चे के होते हैं। जनाब ज़ैनब से जनाब सैयदा ने कहा, बेटा ये कुर्ते संभाल लो। आलिया हाथ बांध कर कहती है, अम्मा मेरा इस तरह सन का छोटा भाई तो कोई नहीं है, ये कुर्ते पहनाऊंगी किसे? जनाब सैयदा ने कहा, मैंने तेरे बाबा को कहा है वो शादी करेंगे, उसके हिजाब से एक भाई तुझे अल्लाह देगा जिसका नाम मैंने अब्बास रखा है। जुमला अगला है जहां पर मोमिन घर तक रोते जाओगे। जनाब सैयदा ने कहा, बेटा ये कुर्ते अब्बास को पहनाकर मेरा सलाम भी कहना और उसे कहना कि अब्बास इन कुर्तों की लाज रखना, क्योंकि मैंने ये कुर्ते उस हाथ से सिए हैं जिस हाथ से मैं तस्बीह नहीं पढ़ सकती। अब्बास मैंने तेरे कुर्ते बड़े मुश्किल में सीती मौला आज के दिन का वास्ता, जनाब सैयदा के उस जख्मी हाथों का वास्ता, या बाबुल हवाज मौला अबुल फजल अब्बास इन मोमिनीन की हाजत रवाई फरमा, जमी अज़ादारों की हाजत रवाई फरमा, जो हमें लाइव दे